अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाय। प्रथम गुरु प्रथम मिलन गुरु, फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाय। I bow down to the holy feet of Lord Sadgurudev. Also, I offer my prayers to Adarniya Mataji, Sadguru Uttaradhikari, Sant Pravar Shri Vigyan Devji Maharaj, Sant Shri Namdevji Maharaj, and entire Acharya Parivar in their presence. Welcome to our awaited Vihangam Yoga International Women's Day celebration event. Today I, Prachi Shirsagar from North Carolina, USA, feel very fortunate to have this seva and to be a host on this stage. Today is the first day of celebration, and second day of this celebration will continue on March 8th. Woman, a Nari, a Shakti, a Mata, one of the beautiful creations of the God. International Women's Day is a perfect occasion to show our reverence to all the Matri Shakti who is helping us in every stage of our lives since we are born. As we grow, we start noticing that our consciousness starts seeking the spiritual light. Here we are in the journey of Brahma Vidya Vihangam Yoga to fulfill the needs of our soul. Brahma Vidya, known as Vedo ki Mata, without the light of Brahma Vidya, our human birth is meaningless. जी, सद्गुरुदेव जी स्वरवेद में बताते हैं कि समस्त ज्ञान विज्ञान की माता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या वो ज्ञान है जिसे ऋषि मुनि योगी अपनी माता कहते हैं। ब्रह्म विद्या जीवन मुक्ति से परमात्मा के मिलन तक का मार्ग बतलाती है। जीवन मुक्ति प्रभु मिलन है, माधु विद्या के बोध, ऋषि मुनि योगी मातु है, आत्म तन मन सोध। जय सद्गुरुदेव। मैं रुचि अवस्थी, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, यूएसए से आप सभी का विहंगम योग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे सहृदय स्वागत करती हूँ। So let us go through the agenda for today's program, which you will be seeing on your screen. Yes,
We will start with the initial prayers, followed by women activities across the globe by Vihangam Yog. We will have opportunity to learn worldly art as well. Please keep a paper and pencil handy for this demonstration. Then we will be showered by Divyavani of Sant Shri Namdev Ji Maharaj. And in the last, we will have ending prayers. In spirituality, one can experience that the progress becomes multifold when one prays every time before starting meditation. Chanting prayers also serves a purpose of self-purification. As we get purified, our eternal devotion to Lord Almighty unravels automatically. Therefore, without any further delay, let us indulge in chanting the prayers composed by His Holiness Sadguru Sadafal Dev Ji Maharaj that led him to realize the Supreme Soul. So let's start with the Swagat Gan. Swagat Gan is a welcome prayer through which we welcome an eternal master, Nitya Anadi Sadguru, to bless this occasion and ask for the divine experience. May he cleanse us of all the impurities, break the shell of ignorance, open the secret 10th door, and make us dip in the ocean of bliss. For reciting Swagat Gan, I would like to invite Tanima ji from Bahrain. Over to you, Tanima ji. जय सद्गुरुदेव स्वागत गान आज स्वागत नित्य गुरु पर संत सुभागम आइए अध्यात्म विद्या दीप ज्योति सोमरस बरसाइए दोष दुर्गुण दूर करी के शुद्ध हंस बनाइए भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए खुले द्वार शब्द सागर भक्त जन आइए जन सदा फल विश्व शिक्षक सान आन बचाइए आज स्वागत नित्य गुरु पर संत सुभागम आइए जय सद्गुरुदेव. Thank you, Tanima ji, for ecstatic welcome of Eternal Master. Next prayer is Mangal Gan. Let us immerse ourselves in his thoughts and pray to him to eradicate differences and ills among various classes, communities, and have universal peace. Let this earth be a heavenly place with plentiful bliss, prosperity, and peace. For reciting Mangal Gan, I request Swati Bharadwaj ji from UAE to sing this beautiful composition. Over to you, Swati ji. जय सद्गुरुदेव. विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए वर्ग द्वंद्व प्रशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए विश्व शांति नाम मंगल सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए विश्व शांति नाम मंगल भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए विश्व शांति
शांति नाम मंगल समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए विश्व शांति नाम मंगल विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। जय सद्गुरुदेव। Thank you, Swati ji, for such a blissful offering. Our next prayer is Udghosh. Through Udghosh, Swamiji makes a powerful proclamation that if a disciple consistently follows the method prescribed in Vihangam Yoga, he will free you from the cycle of birth and death and take you to the abode of everlasting bliss. I would like to invite Suchita Goyal ji from Germany to recite Udghosh at the holy feet of Lord Sadgurudev. Over to you, Suchita ji. जय सद्गुरुदेव। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अर्षठ ताऊ पर बैठाऊंगा अनुभव दर्शे मोती बरसे अमीय नदद अनहवाऊंगा शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णों वाणी बुद्धि ना पाऊंगा महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा जय सद्गुरुदेव। Thank you, Suchita ji, for singing Udghosh in a soulful voice. Now, let us move ahead for the Swarved part. Swarved, written by Anant Shri Sadguru Sadapal Dev Ji Maharaj, is called the Encyclopedia of Spirituality. What makes it more special is that it is Aptavani of a true master. That is, it is established
in eternal and unchanging truth and is free of illusions. All spiritual and material concepts have been explained in a simple and direct language. For reciting some Swarved couplets, I invite Anita ji from South Africa. Over to you, Anita ji. जय सद्गुरुदेव। चतुर्थ मंडला सप्तम अध्याय दोहा नंबर 1, 2, 3। विरहायताति कठिन है, शन शन करत मरो, विरही विलाप में निश दिन करत हो। हसी हसी प्रियतम ना मिले, नयन बहे निस्वास, धधकत ज्वाला विरह का, जरत मरम हुरया। रोधन विरह वियोग में, जिन पाया तिन पार, आंसू नयन प्रवाह है, पहुँचे कवन सहाय। जय सद्गुरुदेव। Thank you, Anita ji, for the wonderful recitation of Swarved Dohas. Fear is the first and biggest obstacle to spiritual realization. A spiritual experience of energy that flowers much like a lotus rising above the negativity and fear. Source of nourishment of this lotus is coming from the same swampy muck of negativity. A state of fearlessness shows that a person has actually accepted the environment for what it is. This teaching has been beautifully written by Sant Kabir Sahib ji in his bhajan. So let us invite well-known bhajan singer Bobby Lyle ji from Canada, who was also Miss India Intercontinental in 2012. With blessings of Sadgurudev, she has served in many programs of Vihangam Yoga and delighted everyone by singing devotional, soulful bhajans. Over to you, Bobby ji. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जी। मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जी। उल्टी पवन चढ़ाऊंगा
चढ़ाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण मन ममता को स्थिर कर लाओ जी मन ममता को स्थिर कर लाओ जी पांचों तत्व मिलाऊंगा मिलाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण इंगला पिंगला सुख मन नाड़ी जी इंगला पिंगला सुख मन नाड़ी जी तिरवेनी पर हो नहाऊंगा नहाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण पांच पचीसों पकड़ मंगाओ जी पांच पचीसों पकड़ मंगाओ जी पांच पचीसों पकड़ मंगाओ जी एक ही डोर लगाऊंगा लगाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी जीत निशान धुराऊंगा धुराऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Thank you, Bobby ji. Listening to bhajan in your soulful voice is always a bliss. True. I felt I got lost into eternal master. But now let us know about our today's guest speaker.
Here are very few completely surrendered disciples of Lord Sadgurudev, who we remember as an example. Rajarshi Sardar Vasawa Singh Ji was one of such soul. Srimati Amarjit Kaur Aunty Ji is his daughter-in-law who is tirelessly serving Lord Sadgurudev and Pujniya Mataji for more than 50 years. With the blessings of Lord Sadgurudev, after departure of Rajarshi Sardar Vaswa Singh Ji, she took forward the legacy of spreading knowledge of Vihangam Yoga in Kolkata and other regions of West Bengal, along with Sant Shri Kapil Muni Ji. She has the privilege of serving Pujaniya Mataji as Pradhan Sevika and stay under lotus feet of Sadgurudev and Mataji. After receiving Lord Sadgurudev's Adesh, she moved to Canada in 2009 to support her family and started to spread knowledge of Vihangam Yoga in North America. She successfully served 7 to 8 years through online satsang conducted by Navy. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी ज्येष्ठ गुरु बहन सदगुरु प्रभु की अनन्य शरण शिष्या सेविका अमरजीत कौर आंटी जी फ्रॉम कनाडा। उनसे अनुरोध है कि वो अपने भाव, अनुभव, स्वार्थ रहित सेवा के महत्वपूर्ण बिंदु हमसे साझा करें। ओवर टू यू आंटी जी। जय सद्गुरुदेव। हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी, थैंक यू। बार बार वंदन करूं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। परमरा सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परमराद अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में कोटि नमन है। प्रथम आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के चरणों में कोटि नमन है। वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। और हमारी पूजनीय स्नेहमयी माता श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सदगुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि नमन है। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आज जैसा कि हम लोग अभी सभी मिल करके महिला दिवस, वुमेन्स डे इंटरनेशनल स्तर पर मना रहे हैं। ये पहला प्रयास है। विहंगम योग परिवार की सभी महिला सदस्यों का बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी दो शब्द कहने का अवसर दिया गया है। सदगुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार मेरा नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। तो समय जो है बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज के युग में नारियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन देकर एक अवसर दिया है कि हम लोग भी अपनी शक्ति को पहचानें। अध्यात्म क्षेत्र में जैसे कि हम आप सभी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग ज्ञान के मार्ग में हैं और सदगुरु की शरण में हैं, और हम लोग सभी इसमें लगे हैं।
सदगुरु देव ने कहा है, स्वामी जी महाराज ने अपने स्वरेद के अंदर कि नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। तो सदगुरु देव के ज्ञान मार्ग पर नर नारी, महिला पुरुष सभी एक समान प्रभु भक्ति करने के लिए सबको अधिकार है, समान अधिकार दिया है। तो हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो जो ऐसा समय में हम लोगों को सदगुरु का शरण मिला है, ये विहंगम योग का मार्ग मिला है। तो सबसे पहले हम लोग जो महिला दिवस, मातृ शक्ति का दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं, तो सबसे पहले आज हमारे मन में भाव हो रहा है कि हम अपने जो गुरु माताएं हैं उनको याद करें। स्वामी सदाफल देव जी महाराज की माता श्री महारानी मुक्ति देवी जी, जिन्होंने इस स्वामी सदाफल देव जी महाराज को इस धरा पर प्रकट किया है, जन्म दिया है, उनको मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है। महारानी मुक्ति देवी जी अपने समय में अपने परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए पूर्ण योगाभ्यास करके पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किया है। और आज सदाफल देव जी महाराज जो इस ज्ञान के प्रणेता हैं, वे योगी हुए, सदगुरु हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सा ऐसा कठिन साधना करके इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है, हम आप सभी जानते हैं। और आगे हमारी जो माताएं हैं, गुरु माताएं बनी हैं, महारानी विमला देवी जी, महारानी कमला देवी जी, महारानी वर्तमान जो गुरु पद पर सुशोभित हैं, महारानी श्रीमती सुशीला देवी जी, जो आज वर्तमान में हमारे बीच में स्नेहमयी माता श्री अपने गुरु पद पर, इस गौरव पर विराजमान है। शत शत नमन है सभी माताओं को हमारा। आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं, उनको याद करते हैं। तो सदगुरु देव का बहुत बड़ा उपकार है हम नारियों पर भी, हम महिलाओं पर भी, सब विश्व पर तो है ही, लेकिन ऐसा ज्ञान दे करके जिसके द्वारा सदगुरु देव ने अपने वाणियों में महिलाओं को भी बहुत शिक्षा दिया है। शब्द प्रकाश के अंदर में ऐसे भजन उन्होंने दिए हैं, वनिता शिक्षा के लिए स्पेशल भजन लिखे हैं। तो उसमें कहा है कि माताएं बहनें अपनी शक्ति को पहचानो, इस जीवन को लाभ लो, सदगुरु शरण में आकर प्रभु की प्राप्ति करो, भक्ति करो, अपने जीवन का सुधार करो। व्यर्थ के भूत भवानी ये सब प्राकृतिक पूजाओं में पढ़ करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट मत करो, सदगुरु की शरण को प्राप्त करो और इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके अपने अंतर में अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। सदगुरु देव का ऐसा उपदेश है, ज्ञान है। तो अपनी वाणियों में सदगुरु तो सबके भले के लिए, भलाई के लिए संसार में आते हैं, सबके कल्याण के लिए आते हैं। तो हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मुझे अपने जीवन काल में सदगुरु का शरण प्राप्त हुआ है। जैसे आप अभी सुन रहे थे, तो हमारे ससुर जी के बारे में भी, तो उन्होंने ही स्वामी वर्तमान सरकार संत देव जी महाराज को अपने निवास स्थान हावड़ा घुसड़ी में बुलाए थे, वहीं पर हमारा उपदेश हुआ। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। वे तो कुछ वर्ष ही, 4-5 वर्ष रहे, लेकिन सदगुरु का कृपा मैं क्या कहूं आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने कहा है कि अपना जीवन का कुछ, जीवन में दुख सुख लगे रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी सदगुरु का ऐसा संबल मिला है, सदगुरु के ज्ञान का संबल मिला, उनका कृपा का, उनका वरदान मिला
कि जीवन काल में मुझे पता ही नहीं चला है कि कैसा इतना समय व्यतीत हो गया। यहाँ भी कुछ डगमगाए हमारे कदम। सदगुरुदेव ने अपनी कृपा से फिर हमें सहारा दिया और इस जीवन काल में आगे बढ़ते रहने का शक्ति दिया, बल दिया, साहस दिया। ऐसा कृपा किया कि हमारे मन को अपने चरणों में लगा दिया। उनका ही कृपा है, ये हमारे बश की बात नहीं है कि हम उनका सेवा कुछ कर पाते, उनके इस ज्ञान मार्ग पर चल पाते। ये उनका ही सेवा है, उनकी ही महिमा है, सदगुरु का ही महिमा है। तो मैं तो उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जीवन को उन्होंने ऐसा स्वर्ग बना दिया है। हमारा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया है कि सदगुरु का शरण मिला, ये विहंगम योग का मार्ग मिला। विहंगम योग मेरे जीवन का प्राण आधार है, मेरे जीवन की शक्ति है। इसी के सहारे मैं अपना इतना जो जीवन का पथ है, इतना जीवन का समय है, वो पार कर पाई हूँ। तो उनका बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ। तो हम सभी का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत सौभाग्य है कि ऐसा हम लोगों को मार्ग मिल चुका है, सदगुरु का शरण मिला है। आज तो हमारी वर्तमान सरकार भी मातृशक्ति को और महिलाओं की शक्ति को ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि आगे आकर के इस विहंगम योग के प्रचार प्रसार में अपना आगे बढ़े। और आज हम देख रहे हैं कि संत समाज विहंगम योग जो है, इसके अंदर में बहुत सी महिलाएं हैं। अभी बहुत सी महिलाएं ऐसा सेवा कर रही हैं, बहुत प्रकार से सेवा है। आजकल का समय बहुत बदल चुका है, हर क्षेत्र में नारियां आगे आ रही हैं। हमें खुशी होता है कि हमारे विहंगम योग परिवार में भी हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां सब आगे आकर के सदगुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं, इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उसी का फल का हम आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये प्रयास हुआ है। आज इंटरनेशनल जो महिला दिवस मनाए हैं, सबका धन्यवाद मैं करती हूँ। सदगुरुदेव को बारंबार, अपनी माताओं को बारंबार नमन करती हूँ। आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए तो मेरा यही कहना है कि जो अवसर मिला है हमें अपने जीवन काल में, जो अवसर मिला है सदगुरु के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का, सदगुरु का सेवा करने का, इस ज्ञान के मार्ग पर चलने का, तो उस अवसर का हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। सेवा जो भी मिलता है, जिस प्रकार का सेवा मिलता है सदगुरुदेव का, तो हमें उस अवसर को लाभ उठाएं, वो सेवा करने का प्रयास करते रहें, अपने अंतर में शुद्ध भाव रखें, शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से सदगुरु का भक्ति करें, उनका जो भी आदेश है उसका पालन करें। सदगुरुदेव ने तो कहा ही है कि ये अद्भुत मार्ग है योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो हमारे सब जो है दुख दर्द क्लेश मिटाने वाला वो सदगुरु है, वो आज हम लोगों को मिल चुके हैं, उनकी शरण प्राप्त हो चुका है। मन में पूर्ण विश्वास रख करके हम लोग चलते रहें इस मार्ग पर। उनकी कृपा जो है सब पर बरसती रहती है। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बोलिए सदगुरुदेव की जय। सबका धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत आंटी जी, अपना भाव सदगुरुदेव के चरणों में रखने के लिए। आपको सुन के इस बात पे विश्वास होता है कि हर बात संभव है अगर भाव सच्चा हो तो। यही सच्चा भाव हमें देखने को मिला हमारी रिस्पेक्टेड गुरु बहन बदमिनी जी में, जिनको इंडिया से बाहर पहला आश्रम स्थापित करने का श्रेय जाता है। Bali, Indonesia ashram is the first Vihangam yoga ashram in foreign land, and Badmini ji is the first woman who designed and built the architecture of this ashram. She completed her education in engineering of agriculture in Indonesia. Before marriage, worked as a deputy director in the company with
3,500 employees. She got an offer from one plant in Germany as well to join as a manager, but she decided to be with family and kids. She spent her time to grow spiritually, to fulfill her intense desire of finding mukti and meeting Atma. She is now a disciple of Sadguru Swatantra Devji Maharaj. Badmini ji has joined us today from Germany. We request Badmini ji to come forward and shower us with your blessings and inspire us with the secret of your consistent seva. Over to you, Badmini ji. Jai Sadgurudev Bhagwan. Om. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sachat Parabrahma, Tasmai Sri Gurue Namaha. Om Sadguru Deo Namaha. Om Sadguru Deo Namaha. Om Sadguru Deo Namaha. My Saranam or surrender to His Holiness Swamiji San Prawarji. My Sadar Pranam to San Namdevji Maharaj and Pujaniya Mataji. My pranam to all Guru Behen and Guru Bhai, and thanks for inviting me to give speech here regarding Women Day 2022. And my special thanks to Mayaji from USA. I would like to name this. This is International Vihangam Yoga Women Group. Oh, blessed from Sadguru Deo Bhagwan for women empowerment. Women in spiritual or spiritual woman. We believe having strong mentality because we are getting blessed by Sadguru Deo in each of our goal, in family as daughter, wife, mother, and woman in society. What is the benefit for us being in spirituality of Vihangam Yoga and disciple of Sadguru Deo Bhagwan? And how Sadguru Deo guide and help us, and how important to get blessed from His Holiness. This is the topic today we will talk. In Hinduism, teach us in life, we should remember and follow basic rule. Mata Pita, Guru and Bhagwan. Mata or mother, that means woman is the first in family. Why? Because if we compare, woman is a pole in one house building and husband as a rooftop. Here, if the pole is not strong enough to holding the rooftop and all what are belonging on that house, then those house will fall down even if the rooftop very strong. So strong mentality woman need here in family. We get strong mentality if we get positive energy. And we can get positive energy only from the God.
Remember, Mata Pita, Guru, and Bhagwan. That's the process. At first, as a wife, we do all work at home, care of husband, children, also as a daughter for the parents, with full of dedication. In each of our steps, we should connect ourselves to Sadguru Deo Bhagwan. Then in all what we are doing, we'll get blessed from His Holiness. Because power of God will not shower direct to us without Sadguru. That positive energy make us strong and showering us from the God to us through Sadguru. And Sadguru transform that energy to us as his Bhakta. Lord Krishna said, or written in Bhagavad Gita, chapter 4:34. Learn the truth by approaching a spiritual master, inquiry from him with reverence and render service unto him. Such enlightened sign can impart knowledge unto you because he has seen the truth. From this chapter, it's clear said, each of human need a guidance from the true science for achievement of human Atma's goal as mukti. So, most from morning waking up, we are doing seva for our family, including for ourselves. But what we have done for our Atma, actually, we born as a human for helping our Atma to get free from bonding of karma and lastly back to Paramatma. Surely we should live our life as normal human in society, but also living in spirituality way of life of Vihangam Yoga. We can do both at the same times, and it's really neat for guiding our family in positive way. Whatever our religion, it doesn't matter. You can continue doing your puja as you believe on it. At the same times, we also should do meditation or sadhana, satsang, and seva for Sadguru Deo Bhagwan. Because only Sadguru Deo Bhagwan can help our Atma. Puja what we do for our devatas, it's only will bring us back again and again to this life in this Maya world, as it is mentioned in Shiva Purana. In Shiva Purana, it's telling, forgetting this human body, we must born 84,000 times through different species, and in a book of Raspati Tattva, written that Lord Shiva said, for achieve mukti, human must have a true spiritual guru who can guide through yoga or meditation. Only then there is no other way. Now we are finding the true spiritual guru, and we should not wasting our time as mother or wife in this life, but also busy for our Atma born as a human for achieve mukti at last goal. So
we get both at the same time. How lucky we are as a Bhakta of Sadgurudeva Bhagwan. How many people in this world get this opportunity? Very seldom. We should not lose our time by wasting time on enjoying this life. For practicing this spiritual, we should not wait until we get old, because we don't know when we will die. The point here is, while this family life going on, at the same time, our spiritual activity also going on. Then after the children are grown and being independent from us, that means as a mother or family woman, we have success, and we also have achieved some benefit in spirituality. As a spiritual woman, that's great, isn't it? Yeah. Thank you very much for your attention. Stay healthy, stay safe and happy always. Vihangam Yoga woman should be always happy, because Sadguru bless us always. Believe it. It is. May Sadgurudeva Bhagwan bless all of us. Jai Sadgurudeva Bhagwan. Thank you very much. What an exceptional experience you shared with us today, Badmini ji. It is never easy to set up anything for the first time in a completely different place and environment. But with Sadguru's grace and your willpower, you made that possible. Thank you for being with us today to inspire all the women. Now, it's time to move to the next phase of the event, where we will see the contribution of Guru Behans in special seva. First, I call upon Tushaviji. She practices as a licensed massage therapist. You know, she knows art. She loves art and started teaching art online to kids and adults. She has also conducted a few Varli art workshops as a fundraiser activity for Vihangam Yoga. Varli art was originated in Maharashtra, India. तो आइए हम सब सीखते हैं वर्ली कला की बारीकियां तोशावी जी से. पेपर और पेंसिल साथ में रखिएगा. Over to you, Toshavi ji. Yes, Sadgurudev. Thank you for giving me opportunity to present Varli art on this platform. My name is Toshavi Dolas, and I am from North Carolina, USA. Art is my hobby. During pandemic, I started teaching it online to kids and adults. It was Sadguru's daya that kept myself busy when there are a lot of businesses are slow down. I conducted few workshops as a fundraiser activity for Vihangam Yoga. Please contact me if you would like to support Vihangam Yoga fundraiser by conducting online workshops for your location. Today, I am giving you a quick demonstration on Varli art to represent the strength of women from this era. Being a quick demonstration, I would not be able to give the detailed instructions. Please excuse me for that. Varli is a tribal art from Maharashtra, India. It includes geometrical shapes like triangles, circles, lines to draw the elements in nature. Just get a pencil and a plain paper and we will start. Hope everybody is seeing my video clear. Okay. So first figure we are drawing in the first row center, which represent all mothers and caregiver amongst us. We will start with a triangle.
The second figure we are drawing is the homemaker, represent homemaker amongst us. The third figure we are drawing on the left-hand side, first row, is about all artist women. Next, we are drawing in the second row, left-hand side, which represent all the scientists, researchers, and astronauts amongst us. Next, we are drawing on the second row, right-hand side, which represent all healthcare workers, doctors, nurses, and all healthcare workers. Now we are moving to our third row. Third row on the left-hand side, we will draw the woman which represent a businesswoman, techies, and entrepreneurs.
Next, we are drawing in the third row center is a farmer woman. It can represent the farmers and grocers among us. Third row on the right, we are representing all teachers among us. Now we move in the center of our second row, this space. Here we are drawing a woman, which is the ultimate goal of human's life. When we are leading on all of the fronts, we should also give the priority to the soul's need through meditation. Due to time constraint, I'm just showing you the finished picture after I colored. Wish you very happy International Women's Day and Jai Sadhguru Dev. Over to you, host. वाह, क्या बात है। हमारे ग्रंथों ने भी नारी को दुर्गा का ही रूप कहा है। संसार के कार्यों को करते हुए भी वो स्वयं के लिए समय निकाल साधन भजन भी कर सकती है। इससे एक दोहा याद आया है, नव द्वारा को बंद करो, खोलो 10वां द्वार, खिड़की एकादश खुली, अग्र पुरुष दरबार। It means our consciousness is scattered in worldly activities. Through meditation, we withdraw it from worldly activities. Then our consciousness comes to a stage where it reaches a level to experience Almighty. Thank you so much, Toshaviji, for representing strength of women from this era through Varli painting. There are many activities which require continuous seva. USA team
has been working continuously for prachar, fundraising, satsang, and motivating daily and Brahma Muhurt meditation. Today, our Guru Behan Rashmi ji has joined us from Virginia, USA, who is working as a software engineer in a well-renowned company. She will share with us the role of women in USA team and how they were able to collect and encourage their hidden capabilities. तो आइए जानते हैं रश्मि जी से यूएसए में नारी शक्ति के योगदान के बारे में. ओवर टू यू रश्मि जी. Thank you for giving me the opportunity to talk about the role of Guru Behan from USA in the spread of Vihangam Yoga and their contribution towards the Sarved Mahamandir. Before that, मैं स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ. ममता मई माता जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ. संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ. संत मणि नामदेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आचार्य परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च. ईश्वर एक ही है, सभी जो सभी जीवों में है, सर्वव्यापी है, सभी जीवों के भूतंतरात्मा में है, हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं, जो भूत में है, भविष्य में है और भविष्य के ज्ञाता है. उस ईश्वर को प्रसन्न करने का एक ही साधन है, वो है सद्गुरु सेवा. सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई. सेवा धर्म अन्य सभी धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण है. अभी के टाइम में सबसे बड़ा सेवा साधना के साथ स्वरवेद महामंदिर का निर्माण है. स्वरवेद का अर्थ स्व अर्थात ब्रह्म है और वेद अर्थात ज्ञान. स्वामी जी ने स्वरवेद में 3137 दोहे लिखे हैं. स्वरवेद स्वामी जी 17 वर्षों की तपस्या के बाद अपने हृदय के चिंतामणि का चेतन प्रकाश और हृदय से दिव्य ज्योति स्वरवेद नामक ग्रंथ दिया है. स्वामी जी का संकल्प है इस सदग्रंथ को आकार देने का तीसरी पीढ़ी में. इसके लिए सभी जो स्वामी जी से प्रेम करते हैं इस संकल्प को बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. यहाँ पर घर बैठे बैठे नारी शक्ति भी पीछे नहीं है, सभी प्रकार से सेवा में भाग ले रहे हैं. So there are some contributions that here Guru Behans are across different states in US involved in so many activities like food drive, donating twice for children who has cancer, donating handmade masks to the hospitals, managing and conducting the yoga classes for the ladies and gents. Another opportunity to serve our society in North America Institute of Vihangam Yoga through help to elderly people who is above the age of 80 plus. Their dreams are their wish list in the Christmas, and online classes are not easy to conduct, but there are great planning and the coordination and teamwork make success. So Nari Shakti team are also involved in other activities like hosting twice a meditation session, weekly lady satsang, bhakti bela, bhajan sandhya, bala satsang, sankat mochan prayers, hosting
and giving talk during the weekends in Hindi and English satsang. Guru Bahans are participating actively in Prachar and Prasar Seva, scheduling the session with initiated people in case they have any question and facing the challenge during the meditation. They are also involved in the testing of the website that helps people to donate the Vihangam Yoga and Swarvid Mahamandir. Online satsang and Swarvid Path is also organized in so many occasions. During this pandemic, it was really very challenging to generate the funds. So deep down in our house, we always desire to contribute financially, even it was a single dollar. So in one of weekly lady satsang, Swamiji has gave us like so many inspiration to discuss the idea with Guru Bahans, and we have the great team how we are giving the ideas and implementing that while being in the home. So there was put in the action immediately with the grace of Swamiji. From home, Guru Bahana started conducting online classes on painting, maths, piano, guitar, and some more. Some of the classes like yoga classes, which is conducted from the India, the ladies and the coordinating and marketing here, and so that the maximum people could attend this benefit. And whatever the donation comes, we always here in the Navy, it goes. So other Guru Bahans tap into their areas, like you already saw the painting, worldly arts, and calligraphy, and making the Christmas ornaments, food catering of rotis, curries, babysitting. There are some more. So the proceeds of all these activities is donating towards the Swarved Mahamandir. So ladies who are working also, they're donating the times with the families and try to like giving the best contribute in Seva. There are so many peoples in the US as in India, but every state has a very powerful soul. So I pray to Swamiji that we continue doing Seva and we continue to remain fortunate and receive the opportunity for doing Seva. So thank you. I'm just concluding here my thoughts and all the all the Seva. Thank you so much. Over to your host. What a perfect example of teamwork you explained, Rashmiji. So many different seva perfectly organized by USA team. Thank you, Rashmiji, for giving the insight of the continuous efforts by USA Guru Bahans. Blood donation is a great service. One blood donation can save up to 3 lives. Sant Pravar Shri Vigyan Devji Maharaj says blood donation is a great service to mankind, equivalent to a service to the God. सच में प्राची जी, ये बहुत बड़ी सेवा है जो किसी का अमूल्य जीवन बचाने में सहायक होती है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने कहा है, रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन रक्षा है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। Kusum Rana ji from UAE is Updeshta and Pracharika of Vihangam Yoga. She started her Vihangam Yoga journey from childhood. She is working in finance for last 10 years in Dubai. तो आइए जानते हैं यूएई टीम की महादान यात्रा के बारे में कुसुम जी से। ओवर टू यू कुसुम जी। थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव एवरीवन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I would like to bow on the feet of my Sadguru. I would bow on the feet of Pujniya Mataji, Sant Pravarji, and Sri Namdev Sarkarji. And my regards to all the brothers and sisters present on the spiritual events of Vihangam Yoga on this Women's Special Day. First of all, I wish all the women here present a very happy Women's Day. I bow on the feet of Sadguru to give us the power and the strength to go further and make the society more powerful and balanced with the knowledge of Vihangam Yoga. Here I am today to give a brief and service and the duty which is being carried out by the women in UAE with the help of our brothers and sisters in Vihangam Yoga. There are different kinds of duties which are being done in UAE, like planting the trees and just helping them, each and every people, just explain them how to plant and how to give each other's plant, how plant is necessary in our life. The second thing, in the pandemic, we also help with the foods, we also help with the clothes, all kinds of donations is being done. Among them, one of the most important is the blood donation campaign, which is being done by UAE from last few years. It is being done on the auspicious occasions on the birthday of Sant Pravarji at the month of October every year, which is being carried out from last few years. For this, we need to get an appointment in the hospitals because here in UAE, it is very difficult to get appointment for the blood donation. We just cannot carry ourselves and go and give blood in the hospitals. So before a year, if we have to carry out blood donations in October, we have to book on January and February. As soon as we get the appointment fixed and we get that, okay, we are ready to give the blood on the month of October, then we start our workout. In that case, we select different people and different groups we do and schedule the seva and the duties to them so that it can be carried out fluently without any disturbances. Because some people, they take the responsibility of the foods, some people take the responsibility of the transportations, and some people, they contact with peoples and make them understand how it's important for a human to carry out, to give blood donation and to give life to others. Because most of the people here, they have the myth that if we give blood, there will be weakness, there will be some kind of problems in a body. But we, with the help of some Guru Bhais and Guru Bahans, they go each and every homes, they contact with the officers people, they contact in the schools where they contact with different society peoples, and then we make a list of 100 to 200 peoples. We contact, we make them understand that how is it important for us to give blood and save the life in the society. So among them, what happens? Near about, we are able to make them understand 100 to 120, and then the transportation facility, we give the pickup and drop facility, and then near about 50 people give blood each year at the month of October. We have a banner of Vihangam Yoga. Under the banner of Vihangam Yoga, we register the name, and the hospital itself, it knows that, okay, there is an organization known as Vihangam Yoga, and under that, we give to make the arrangement for this blood donation campaign. Well, we see after getting all these kinds of work, we make the people understand that how is it important, and we make a contact with them after the campaign also. Because what happens, everybody is busy in their life and everybody has that tensions in their life that, okay, the life is going so fast and no one knows how to live a blissful life.
So with the help of different kind of duties and services, we explain them how seva is important to us, how it makes us more powerful, how it gives us more strength, and how it is very necessary for each and every woman and man to be spiritual. As a woman, we are more powerful and we are given a special power by our Prabhus. And that too, if we are connected with Vihangam Yoga under the roof of Sadhguru, then the double power comes itself. So it is very necessary for a woman to be spiritual. And if a woman is spiritual, as it is being said by Padmini ji, it is very necessary. If a woman is spiritually connected, she will give more and more balance and strength to the society, because woman treats as a seed. If a woman is balanced, if a woman is spiritually added, then what happens? It gives the same lessons to the children's, and then a better home is created. After that, a better society is being done. And if a society is balanced, and if a society is having that power, the strength to just face the world, to face the problem, then there will be less and less depression and anxiety, which is being faced of new generation is facing a lot. Vihangam Yoga is the only organization which have the power, which have the art of making a life a powerful and a blissful and a happy life. Well, we see different peoples, those who are not added with the Vihangam Yoga, they ask us, what makes you more powerful? How you all are very happy in this pandemic time also. That makes me laugh. I just explain them, it's not the power of ourselves, it's the power of a Sadguru. We makes them understand, we makes them how the life is and how the art of life to be lived. So first of all, we are human, and being a human, we are bound to help the society. There are different kind of sevas, and there are different kind of Matri Shakti is working differently from all over the world, and it's very, very inspiring, because Matri Shakti, not only they take care of the home, the society, the children's, their husbands, their work profile, as well as they take care of doing all the activity for herself also. Because being all this, we have the courage to face the society, to face the world with all kinds of problems, but still we have to take time for doing duties, and it is our responsibility to make the society more powerful and make the generation most inspiring and blissful with the help of adding them with the spirituality. Materialistic life does not make anyone happy. And most of us, we see mostly different part of the world, people are suffering of pain because they don't know what is seva, what is service, how to surrender ourselves. So it is only and only one, that is our Sadguru, and the powerful path which we get in our life, which makes us more inspiring and makes us more powerful and courageous, so that we can do more and more seva in the society. Now, as Rashmi has told us that how it is very important to connect yourself with different seva. Blood donation should be carried out to different part of the world, as well as our most important is Swarved Mahamandir Seva. It should not be ignored, as it is being told 100 times, many times, that our most important now duty and seva is the making of Swarved Mahamandir. So we will pray in front of Sadguru that Sadguru should give us more and more power, so that we can bring more painful soul and we can help them to connect with Vihangam Yoga and to live a blissful and a happy life. Thank you so much. Wish you all a very happy Women's Day. Thank you. Thank you, Kusumji, for informing about blood donation activities in UAE. This seva is not easy to do. It definitely requires lots of efforts in understanding regulations and people motivation. Great to see our Guru Behans actively participating in blood donation along with Guru Bhais. आध्यात्म है ही ऐसी चीज प्राची जी, जहां होता है उसके ज्ञान का उजाला चारों ओर फैल जाता है।
आप सभी महिलाओं के संघर्ष और आत्मविश्वास को नमन। इसी बात पे एक कविता याद आई है जिसे सविता पाटिल जी ने रचा है। कभी जनक की जानकी है ये, तो कभी राम की सीता, कभी काली सा क्रोध है इसमें, तो कभी शकुंतला सी शीतलता, द्रौपदी सा लोच है इसमें, धरती की है सहनशीलता, मेनका उर्वशी की सुंदरता भी है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भी है। तेरे रूप अनेक हैं, तो एक नाम में कहाँ समाती है, सूर्य की किरणों की भांति संसार को जीवन देती जाती है। Beautiful lines, Ruchi ji. Thanks to her for expressing the different roles of women in words. Now, let's move ahead with the initiative taken by Vihangam Yoga for health and environmental improvement. When we talk of women, a very important role is of mother. We bow down to Mother Earth, who takes care of us from birth to death. She provides fruits, flowers, water, trees, forests, which are essential for survival. We thank the superpower of Sadguru to show us the light in darkness and take care of important thing, nature. On the occasion of International Women's Day, we had Nutri-Green competition conducted by Matri Shakti and Yog and Yuva team. Microgreens are young vegetables that are approximately 1 to 3 inches tall. And you know, microgreens are usually harvested in 7 to 21 days after germination. They are rich in vitamin C, A, K, E, which is very healthy and easy to grow. Ruchi ji, I am also going to try growing the nutri-greens and make a recipe with that. जी बिल्कुल प्राची जी, अब पेंसिल्वेनिया में भी स्प्रिंग आ रही है और मौसम बदल रहा है। मैं भी मेथी, धनिया, पुदीना जैसी कुछ हर्ब्स घर में ही उगाऊंगी। Wow, sounds like healthy choice, Ruchi ji. Today, we are honored and blessed to have divine presence of Sant Shri Namdev ji Maharaj. I would request Nivedita Bhadraka ji from Belgium to welcome him. Over to you, Nivedita ji. Thank you. संत होत परमारथी, सहज करे उपकार, मेघ वृक्ष सरिता धरा, परहित इन सब कार. We are reminded of you, Sant Shri Namdev Ji Maharaj, upon reading this doha. Since you have been the one to transform lives of hundreds and thousands of people across more than 35 nations of the world. He is the president of the international wing of Vihangam Yoga. He also leads various social and economic welfare initiatives of Sadguru Sadafal Dev Vihangam Yoga Sansthan in collaboration with the United Nations Economic and Social Council and the United Nations Habitat. Some of his initiatives include Women Empowerment Program, Youth Vocational and Leadership Program, Handicraft Development Program, Rural Development and Environmental Initiatives like Name Tree, where numerous saplings are planted and nourished every year across India. Last but not the least, he promotes a holistic well-being through the Abhyas School of Yoga. His recent YouTube video on Law of Attraction attracted more than 2 million views in just less than 3 weeks of time. On behalf of Vihangam Matri Shakti's Women's Day celebration, I bow down at your holy feet and request you to bless us with your speech. Sanji, the eve floor is all yours.
Shiji. Are you connected? Yeah, we cannot hear Sanshri. So till the time he joins, let's talk about Sarved Mahamandir Dham. Ruchi ji. Yeah. Ruchi ji, do you know about Sarved Mahamandir? Yes, Prachi, I have heard it is among the world's largest meditation center located in Umraha, Varanasi. True. It has a capacity of 20,000 and 4,000 dohas of Sarved inscribed on the walls. This is a 7-floor superstructure. Really, this temple will not only be a paramount spiritual center and a transcendental meditation center, it is to be a center of social and cultural awareness as well. With its attractive and soothing ambience, this structure is going to present yet another example of rich Indian architecture and is devoted to the entire mankind for their religious, moral, social, educational, cultural, and spiritual growth. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji visited Sarved Mahamandir in December on the occasion of Vihangam Yoga annual function. He bowed down to the positive energy of this place. When 20,000 souls practice Vihangam Yoga meditation simultaneously, in an immense spiritual energy will flow here. One single visit can change everything. In addition to the existing project, 8 more projects are planned in future. Goshala, old age homes, free boarding school for 5,000 students, naturopathy hospital, yoga research center, etc. There is also a plan that 100-feet statue of Sadguru Sadafal Devji Maharaj will be built as well. Swamiji says, गंगा बह रही है, नहा लो. एक बार सर्वेद महामंदिर बन जाएगा, तो तुम कहाँ सेवा करोगे? This is the right opportunity for us to be a part of such a noble cause. Donating for this cause is the easiest way to participate in the journey of seva. हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण. हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण. So, Sanshri, have you joined? Looks like he has joined, but we are not able to hear him. And let us wait for some time so that yeah, sure. We will wait for some time. Here, we are really blessed to have Sant Namdevji Maharaj here, and he is
join now. So I once again request Sant Shri Namdev Ji Maharaj to bless us all with your Divyavani. बंदो मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय नित्य अनादि षट वस्तु है इन कर सब विस्तार रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार सब देवों का देव है परमा पुरुष का रूप बिन गुरु प्रभु जीवना मिले भटकी रहे भवकूप माया लोक छोड़ाय कर चेतना लोक निवास सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माय पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। मातृशक्ति के चरणों में शत शत प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य का यह क्षण है। समय अपने आप में गतिमान है। मातृशक्ति की जो ऊर्जा है वह एक शक्ति के रूप में जो उपास्य है, उपासक के रूप में हमेशा से सनातन धर्म की एक अभिन्न गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। माता ही शक्ति है। माता ही उन दिव्य शक्तियों की प्रदाता है जिस जातक को माता का आशीर्वाद नहीं, उसके जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है। और वह कैसा संघर्ष है जो उसके पिछले जन्म से संबंधित है और इस जन्म में किसी न किसी रूप में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। उन्हीं कर्म बंधनों से विमुक्त होने के लिए
यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब साधना की स्थिति में व्यक्ति होता है तो वह देखता है किसी न किसी रूप से एक व्यक्ति कई विषमताओं को, किस अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य ये होता है कि उसने किसी रूप में मातृशक्ति का सम्मान नहीं किया। यह साधना में अनुभव होता है। इसीलिए देखा जाता है इस जन्म में माँ की कृपा के बिना यह जीवन, सांसारिक जीवन समृद्ध नहीं बन सकता। समृद्धि का मतलब केवल धन की प्रचुरता से नहीं, बल्कि मानव के व्यवहार से। इसका जो व्यवहार हो वो उत्कृष्ट हो, सामाजिक हो। तो जो भी आपको असामाजिक तत्व दिखते हैं, कहीं न कहीं मातृशक्ति का वात्सल्य प्राप्त नहीं होता है, यह उनके अंदर वो गुण नहीं है। इस बात को आपको स्वीकार, आप देख सकते हैं अगल बगल। मां वात्सल्य है, मां प्रेम है, मां जो शब्द है, क्योंकि मां भी है और मां के साथ साथ कई तरह के अवयव इस रूप में समाज ने उस पर थोप दिया है, दे दिया है, जिसको वह लेके चलती हैं। अब जो भी हैं यहाँ पे मातृशक्तियां हैं, जो भी आप सभी सुन रहे हैं, और मातृशक्ति को ही यह अवसर मिलना चाहिए कि वो बोले, पर मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं एक व्यक्ति होने के नाते उस पर्सपेक्टिव से बोलूंगा। और इसका कोई किसी से सुना हुआ या समझा हुआ नहीं, पर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता, पर अनुभव के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसे जरूर आपसे साझा किया जा सकता है, जो समाज को एक नई दिशा देने में समर्थ होगी। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होती है एक व्यक्ति के जीवन में, वह मां से ही प्रारंभ होती है। अगर मां से अच्छा संबंध नहीं है तो पूरा विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वह किसी, चाहे वह कल को बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसके और अन्यत्र परिवार सदस्य जिस रूप में हो, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर माँ की कृपा है, माँ का वात्सल्य है, प्रेम है और इसी जीवन में है, तो ऐसा व्यक्ति एक सुलझा हुआ होगा, शांत होगा, गंभीर होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी वह शांत पूर्ण होगा। माँ का प्रेम नहीं है, माँ की कृपा नहीं है, तो चंचलता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी चंचलता? माँ जो है चंद्रमा समान है, पिता जो है सूर्य समान है। चंद्रमा पानी का भी स्वरूप है, पानी हमारे शरीर में भी है 72 से 75% और उससे ज्यादा ही। ऐसी व्यक्ति की वृत्तियां हमेशा चंचल होती हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी है,
शीतलता है, शरीर के अंदर भी पानी है 72% से ज्यादा, और माँ भी चंद्रमा का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जहां तक हमेशा वृत्तियों में ही पड़ा रहता है। आप देखिए अगल बगल, मैं बता सकता हूं आपको अनुभव के आधार पर। इस व्यक्ति का रिलेशनशिप भी बहुत ही सामाजिक लोगों में, वाणी भी चपल रहती, वाणी में शुद्धता नहीं रहती कुछ भी। इसीलिए सबसे जो ताकत है वो अपने आप में, बीइंग अ वुमन इज अ पावर इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आजकल ये बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि महिलाओं को, औरतों को सामाजिक भाषा में बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, सब लोग माता और देवी तो नहीं बोलते। तो ताकत देनी चाहिए। बीइंग अ वुमन इज अ पावर। आप देखिए सिद्धासन में स्वामी जी जब उपदेश करते हैं या विहंगम योग का उपदेश दिया जाता है तो कहा जाता है आप सिद्धासन में बैठिए, और हमारी माताओं बहनों को कहा जाता है कि आप सहज आसन में बैठिए। उनको आपको सिद्ध भी नहीं करना है। जिसका सिद्धासन सिद्ध नहीं, वो साधना करने बहुत दिक्कत होगी, साधन भी दृढ़ नहीं होगा। लेकिन माताएं, हमारी बहनें पहले से ही उस श्रेणी को प्राप्त हैं, जस्ट बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमन। एक मातृशक्ति को यह अवस्था ऐसे ही प्राप्त है। तो आप देखिए जितने भी समाज में जिस तरह की वृत्तियां हैं वह इसलिए हैं क्योंकि शरीर की शक्तियां जो है संतुलित नहीं है। इसीलिए पूरा यह केंद्र जो है, जो केंद्र बिंदु है आत्मशक्ति का, वह इंद्रियों के ज्वाला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और वाणी के द्वारा दूषित हो जा रहा है। क्योंकि वाणी जो है मन का ही एक स्वरूप है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसे कितना भी प्रयास करें, हाँ मन को दोष हम दे देते, लेकिन कहीं न कहीं मन बनता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों से ही हमारा मन बनता है और वो हर क्षण बनता है। तो अगर माँ की कृपा हो एक व्यक्ति के, एक बालक पर, लड़के पर, तो उसको देखेंगे वो जो बड़ा ही गंभीर, शांत, उद्देश्य के प्रति हमेशा जागृत, कार्यकुशल भी हो सकता है। पर इस जन्म में अगर ऐसी स्थिति हो कि इस जन्म या शरीर मिला है, पूर्व जन्मों का संग्रहालय तो है ही, इस जन्म में कैसे हम अपने आप को ठीक रखें। तो ऐसे जातक को जिनके जीवन में बहुत सारे दिक्कतें हैं, चाहे माँ कैसी भी हो, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। इसी जन्म में अपने मन के इस भ्रम को और इस अहंकार को छोड़कर, त्याग कर, अगर किसी बालक को ये लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, बुरा हुआ, माता ने ठीक नहीं किया, बहन ने ठीक नहीं किया, इसने उसने बसने ठीक नहीं किया, उसका जीवन कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि उसके पूर्वजन्म के संस्कार किस रूप में आ रहे हैं उसको पता नहीं है। इनफैक्ट इसके लिए बढ़िया है जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, पर उसको समझने की विशेष आवश्यकता है। पर हाँ, अगर इससे ऊपर अपने आप को कर भी लेता है तो ऐसे लोगों के बहुत सारे ऐसे चाहने वाले, मानने वाले, प्रेम करने वाले जो मातृशक्ति उससे जो उसको आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, वो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सारे उसके प्रशंसक, उसके जानने वाले, पहचानने वाले, या उसको बढ़ाने वाले, संवर्धन करने वाले बहुत सारे लोग, अगर वो अच्छा व्यवहार करता है, अगर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, न होने के बाद भी वह अपनी वाणी से
अगर माता को कष्ट नहीं देता है, बहन को कष्ट नहीं देता है, या माँ बहन समान जो भी पद है उसको किसी को कष्ट नहीं देता है, ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़के को बहुत बड़ा साम्राज्य मिलता है। मैंने सही बोला, आपने सही सुना, साम्राज्य मिलता है। लेकिन 12 साल समय है, 1 साल से नहीं होगा, 1.5 साल से नहीं होगा, क्योंकि आपकी ग्रंथियां खुली नहीं है। तो आपकी वाणी में हमेशा संयम हो, माँ के प्रति, बहन के प्रति, और उस समक्ष जो भी पद हैं अगल बगल, वो पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी गड़बड़ किया है, अभी संतुलित नहीं है। इसीलिए तो ये अनुभव का विषय है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मनुष्य को कैसे, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसा एक व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को बुलाता है, आजा आजा आ बैल मुझे मार। सही बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि वो व्यवहार नहीं जानता है कैसा करना है ऑपोजिट सेक्स के साथ। लेट मी बी वेरी ब्लंट विथ यू टू हाउ टू डील विद द ऑपोजिट सेक्स। इफ अ मैन डज नॉट नो हाउ टू बिहेव विद द ऑपोजिट सेक्स, अगर उसको ये चीज नहीं आती है तो उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। भाग्य संवर्धन के लिए आवश्यकता है मातृशक्ति, देवी शक्ति की कृपा पाना। हाँ, कभी उल्टा भी हो सकता है कि कोई आपसे खराब व्यवहार करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे गलत बोले। कई बार ऐसा भी होता है कि दे आर मैन हु आर ट्रॉमेटाइज्ड बाय वुमेन, ऑफ कोर्स दे आर, बट इट डजंट मीन कि आप जाके बुरा व्यवहार करें, बिल्कुल नहीं। कई तरह से आप ना बोल सकते हैं। तो आवश्यकता है आजकल के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना। ये अनुभव के आधार पर बोला जा रहा है। स्वीकार करना सबसे बड़ा ताकत है। टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी मातृशक्ति के बारे में, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं एक चीज आपको बहुत ही अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, और बड़ा ही अद्भुत यंत्र है, मंत्र है, कुछ भी कह लीजिए। वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है और उसको फाइनेंस की बहुत परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके, अगर केवल वह अपनी वाणी से किसी भी मातृशक्ति को, अगर ऐसा उसका जीवन में चल रहा हो जो बहुत सही नहीं हो, मतलब लोगों ने सही नहीं किया उसके साथ, अगर वह केवल अपनी वाणी पे ही संयम रख ले, केवल एक, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, मैं केवल एक की बात कर रहा हूं, केवल एक की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। या तो करेंगे तो पूरा 100% सक्सेस। अगर इस पर जिह्वा पर उसका कंट्रोल हो जाए, तो अगर वो चाहे वह कोई कहे कि तुम्हारा भाग्य वैसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। 12 साल तक केवल अपनी वाणी का संयमित करे, कभी भी माँ और माँ के समकक्ष बहन या उसके समकक्ष किसी को बुरा भला न बोले, कुछ गंदा ना बोले, अशब्द का प्रयोग ना करे, तो उसके जन्म में आर्थिक कठिनाई कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 100% आई कैन टेल यू विथ माय ओन experience, spiritual experience, based on that. Nothing to do with books, nothing at all. कितनी शक्ति है। तो अगर कोई बालक, कोई सुन रहा, कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, if a man is hearing me, because I'm a man, so I can share this one with how you should behave with women. And women could be your mother, women could be your wife, women could be your sister, all of them. क्योंकि आप आदमी से पंगे ले सकते हो, उसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, ले लो यार, ले लो, लेकिन औरत से लड़ने का नहीं, क्योंकि सही नहीं है, ये आपके भाग्य में सही नहीं है, और आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम इस पर ध्यान दें।
हाँ, अब मैं दूसरी चीज पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, मुझे पता है, बहुत देर से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लेना चाहता। और मैंने कुछ देखा बीच में, और ऐसी कलाकृति आपने किया यूएसए के गुरबहान ने वर्ली के नाम से, और इतना बढ़िया कार्य, सभी ने इतना अच्छा कार्य किया है। तो सभी मातृ शक्ति को मेरा सशक्त प्रणाम है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो सबसे बड़ी जो चीज है, ये कहा जाता है कि when you educate a boy, you educate an individual. जब आप एक बालक को, एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, ठीक है। जब आप एक लड़की को, एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। बात सही है ना? और बहुत ही पावरफुल बात है, बहुत ही शक्तिशाली बात है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो आप समझ सकते हैं, जब वो मां बनती है किसी दिन, तो अपने बेटे को पढ़ाती है, अपनी बेटी को पढ़ा सकती है। बहुत ही आवश्यक है। इनफैक्ट मेन डे बनना चाहिए। मेन बहुत men, I think a lot of, like, they need to know the women better. I mean to say that how they operate. But इन साधना, इन ध्यान में आपको पता लग जाएगा, बहुत कुछ पता लग जाता है। बहुत जरूरी है कि सबसे जो आम भूमिका है कि एक व्यक्ति जो है किसी को अपना मान के मतलब उस पर अधिकार समझता है अपना, ये बहुत बड़ी भूल है। ये मानसिक बीमारी मैं कह सकता हूँ, और शायद मैं सही बोल रहा हूँ। और इसका कोई अर्थ नहीं है आध्यात्मिक रूप से। स्वामी जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने स्वयं लिख दिया, नर नारी साधन करे दोनों एक समान, विधि निषेध कोई है नहीं। विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। सदगुरुदेव भगवान ने लिखा है इसको, तो सदगुरुदेव भगवान उस आधार पर लिखा है। किसी को आप अपना अधिकार मत समझिए, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। There's nothing like that. It's all nonsense. We have to understand different things. Like we have to rise from our compulsive nature to conscious way of dealing with human beings. It doesn't have to be with one specific relationship. No, not at all. अगर माँ के साथ भी हैं तो हम एक विशेष अवस्था में ही व्यवहार करें। माँ है तो ठीक है, क्या पूजा थोड़ी नहीं करेंगे माँ की? नहीं करेंगे हम पूजा, लेकिन हाँ, हम जिस रूप में माँ है उसे मानेंगे, स्वीकार करेंगे। स्वीकार का मतलब पूजा नहीं होता। नो, डोंट टेक मी रॉन्ग। कोई वंदनीय पूजनीय नहीं है। वंदनीय केवल एक पुरुष है। आपको एक चीज बताऊं मैं, वेदों में जो आया है, एक ही को पुरुष माना गया है। पता है ना आपको? एक को ही पुरुष माना गया। अलग पुरुष ही पुरुष है और सब स्त्रियां हैं। कैसा कैसा देखिए, ऐसा कि हमें एक पुरुष को पाना है। तो एक वो निगुण भक्ति और बहुधा वर्ग की और कई तरह की भक्तियों में ये सब चर्चाएं आती रहती। तो सबसे जो आवश्यक है अभी समझना, जो प्रैक्टिकल बात करते हैं हम लोग, सबके पास फोन आ गया, टक टक टक, मोबाइल फोन। और कुछ लोगों के पास पैसा भी आ गया, ओके। और पैसा के साथ लोगों के पास समझते ही आप, मोबाइल, पैसा। अगर मान लीजिए आप किसी भारतीय गांव में फंसे हैं, या फंसे नहीं, आप हैं, फंसे क्या है, मोबाइल तो काम कर रहा है आजकल हर जगह, 4G, क्या बात है। और आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड, पता नहीं क्या क्या है, पूरी दुनिया है, अमेरिका, लंदन, अमेरिका, जापान, पूरा आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। पैसे की ताकत से कुछ भी खरीदा जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है
साथ में ज्यादा समय ले रहा हूं, मुझे अब समाप्त करना चाहिए क्योंकि ये बात चलती रहेगी। पर कुछ ही शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर माता पर, ये आप कह सकते हैं कि केवल माता ही क्यों, केवल मातृशक्ति ही क्यों, अगर माता संस्कारवान है तो बहुत कुछ ठीक है। क्योंकि आज के इस युग में, भौतिकी युग में, जहां पे मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया में तकरीबन 3.5 घंटे व्यक्ति के व्यतीत हो रहे हैं। व्यक्ति 8 घंटे सोता है, 16 घंटे, अगर 13 घंटे में क्या करता है पता नहीं, जो भी वो कार्य करता है, लेकिन 3 घंटा, अगर 3.5 घंटा अगर सोशल मीडिया पे, every 7 to 8 minutes you are looking at your phone, you are looking on the screen of your phone. WhatsApp, Facebook, Twitter, WhatsApp, टिंग टिंग टिंग। तो हर 5 या 7 घंटे में आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं। आपका अटेंशन, जो रिटेंशन है, वो रिड्यूस हो रहा है दिन प्रतिदिन। कंसंट्रेशन कोलैप्स हो रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो तो बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। मतलब इतनी ये मतलब हास्यास्पद बात है कि जो एकाग्रता के चरमोत्कर्ष पे बैठा हुआ है वो चंचलता का प्रवाह दे रहा है। क्योंकि आसान काम नहीं है टेक्नोलॉजी बनाना। एवरीथिंग इज बीइंग मेड कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ अस। सब कुछ आसान किया जा रहा है, आसान 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 और हो जाए और आसान। टेक्नोलॉजी यही कर रही है। टेक्नोलॉजी का काम एक ही है, हर चीज आसान करते जाना और मूर्खों को तैयार करते रहना। तो यही कारण हो रहा है कि कुछ लोग बहुत विचारों से प्रगाढ़ हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, और कुछ लोग दास हो गए हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब एक छोटा बालक होता है 5 महीने का, उसके अंदर पूरी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो एक विहंगम योग के तीसरी भूमि के बाद की साधना है, उसको साध होगा। शायद तीसरी भूमि तक कह सकता हूं मैं, क्योंकि वो पूरा वो ब्रह्मांड है। आप अगर बैठे भी हो, आप स्वयं में एक ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा में चंचलता हो, उस ऊर्जा में ईर्ष्या द्वेष जलन हो, तो कैसे एक अच्छा विकास होगा उस बालक का या उस बालिका का। और आज के इस समय में जब व्यक्ति चंचलता के प्रवाह में बहा जा रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ दे दिया गया है, ऐसे वातावरण में अगर कोई बालक पल बस रहा हो तो चिंता का विषय रहेगा। और पता नहीं किस समाज का निर्माण होगा। घर में टॉक्सिसिटी अगर रहेगी, टॉक्सिक वातावरण रहेगा, तो यह कई सारी विकृतियों को समाज में पैदा कर सकता है आने वाले समय में। यह बात इसलिए बोली जा रही है कि केवल एक ही शक्ति है जो उसे ठीक कर सकती है, वह है मातृशक्ति। क्योंकि माता के साथ ही बालक रहता है। अगर माता ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर माता ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। यानी माता से ही विश्व का निर्माण हो सकता है, माता से ही परिवार का, परिवार से उस समाज का, समाज से उस देश का, देश से पूरे विश्व का, फिर भूमंडल का। माता ही सब कुछ है। अगर वो ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता।
और आजकल के आप समय में देख ही रहे हैं कि ऐसा माहौल है। तो सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है, और सभी से आग्रह है कि बहुत अच्छा लगा ये देख के जो कलाकृति आपने दिखाई। हुनर होना चाहिए। एवरी वुमन शुड बी हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। भले आदमी अनपढ़ रहे, पर ये ऐसी अनपढ़ रह ही नहीं सकता अगर माँ पढ़ी हो। बात तो यहाँ पे है। अनपढ़ तभी होगा जब माँ पढ़ी नहीं लिखी होगी। अगर माँ पढ़ी है तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। अगर माँ हुनरवान है तो कुछ कर लेगी। कुछ गड़बड़ भी होता है परिवार में तो कुछ कर लेगी, बढ़ा चढ़ा के कुछ कार्य कर लेगी। इतनी शक्ति है। तो लोग कहते हैं कि प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ाइए। प्रोत्साहित करने की क्या, माता होना अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है। अब क्या चाहिए? तो ज्यादा अभी बोला नहीं, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। और आध्यात्मिक रूप से जो सबसे जो गूढ़ विषय है यही है, एक मनुष्य के लिए, एक आदमी के लिए, कि वो औरतों का सम्मान करे। और जो भी है वैसे रिलेशनशिप, टू बी ऑनेस्ट, ये सब मोह भ्रम के ही बहुत सारे तो कारण रहते हैं। कुछ सत्य नहीं है, जो जीवंत नहीं है, जो जिसका एक आधार जीवंत नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, जागृत नहीं है, विषयों से ऊपर नहीं है, उससे ऊपर देखने की क्षमता नहीं रखता, विषयों के अंदर है, विषयों पदार्थों में, आवश्यकताओं में सना बसा है, वह कभी समझ नहीं पाएगा। उसको कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कितना भी प्रेम मिल जाए, किसी तरह का भी प्रेम मिल जाए, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। पर इससे ऊपर आने पर ही हमारे अंदर जागृति आ जाती है, दिव्य शक्ति आती है। सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे अंदर अद्भुत सफलता का जो कारण है वह मातृशक्ति ही है। जब तक वह हमारे अंदर शक्ति जगती नहीं है। सुषुम्ना जो नाड़ी है जो ऊपर गई है, वह क्या है आपको पता है? इंगला पिंगला सुषुम्न नाड़ी, वो क्या है? तीनों शक्तियां क्या है? अगर देखा जाए, आप गंगा यमुना अगर नाम से भी देख, गंगा किसको बोले? गंगा तो किसी व्यक्ति का, लड़के का नाम तो होगा नहीं। गंगा प्रसाद हो सकता है। गंगा गंगा मैया बोलते हैं, यमुना माई बोलते हैं, यमुना सरस्वती भी वही है ना, राइट। जो सुषुम्न प्रवाह होता है, तो जब तक वो अवस्था नहीं मिलती तब तक हम समझ नहीं पाएंगे किसी चीज को। आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती है। कम से कम एक ऐसे स्थान पे आ जाएं जहाँ पे हमारे मन का मर्जन होता है, मन की मलिनता दूर हो जाती है। जितनी भी भ्रमात्मक ऐसी अवधारणाएं हैं वह स्वयं अपन आप चली जाती हैं, इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक वो स्थिति प्रकट नहीं होती तब तक हमारा जो जीवन है शांत नहीं हो सकता। वह सेवा से ही होता है, वह सद्गुरु सत्संग से ही प्राप्त होता है। हर क्षण हर काल में हम महान वृत्तियों के साथ रहें। गुरु स्वभाव मम वृत्ति हो, आज्ञा भंग न हो, उधर कभी नहीं भूल असस बुद्धि जना होए। तो ऐसे सदगुरुदेव के शरण में रहने से ही वो धीरे धीरे स्वतः प्राप्त होती। और आज आप देखिए बहुत ही सशक्त हैं आजकल। आप देखिए इतने सारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्तियां हैं। और आप इंदिरा नूई को देखिए, पेप्सिको, हाँ पेप्सिको, यस पेप्सिको की सीईओ हैं। और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मातृशक्तियां हैं जो बहुत ही विशेष कार्य को करती हैं। अभी एक रिपोर्ट आया था फाल्गुनी नायर का, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। नायका एक ब्रांड निकाला और इतना लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही विशेष कार्य किया, इतना बड़ी कंपनी खड़ा कर दी। वंदरा लूथरा, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी एक
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किरण मजुमदार, शी इज सच ए सक्सेसफुल वुमन, यू नो। उन्होंने बहुत बड़ा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्थापित किया जो आज इतने बड़े बड़े रोगों के लिए दवाइयाँ बनाती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप एथलीट से ले लीजिए और आप इतने बड़े बड़े कलाकार और अद्भुत लोग हैं। बॉबी लॉयल जी ने इतना अच्छा भजन प्रस्तुत किया, वो भी एक कलाकार है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो वर्ली पेंटिंग्स की उन्होंने कितना अच्छा बोला, माया जी ने कितना। आप लोग मात्र शक्ति ही के पास वो शक्ति है जो विहंगम योग के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएगी। तो मेरा यही अनुरोध होगा आप सभी से, आप लोग भजन प्रस्तुत किए, आप लोग आगे आइए। आप लोग के आगे आने से ही विहंगम योग में प्रचार प्रसार बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग ही वही शक्ति हैं। क्योंकि आप ऐसे भी, मैं अगर अपने आध्यात्मिक थोड़े मोड़े साधन के आधार पर बोलूं, अगर बोलने लायक हूं, तो मैं कह सकता हूं कि women are like, they already are elevated more than a man, more than any man. वो पहले से ही उनका एक इंट्यूशन तो बहुत हाई रहता है। अब बात मानते हैं, एक जो महिला, जो हमारे माताएं बहनें होती हैं, ऐसे ही उनको जानने का, समझने का जैसे लग जाता है, उनको लग जाता, बोलते हैं उनको लग गया, पहले से लग गया, एहसास हो गया। तो वैसे ही बहुत ज्यादा वो जागृत रहती हैं। तो अगर इनके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही रहती है, किसी चीज को पहले से समझ लेना, जान लेना, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है इनका। बस अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो मातृशक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले से ही बहुत आगे है। और आप देखिए प्रेम भक्ति में, आप देखिए जितने भी अच्छे भजन गायिकाएं हैं, सब हमारी माताएं हैं। अभी कुछ दिनों पहले कितना बड़ा सम्मान मिला उनका शरीर जब छूटा, श्री दीदी जी का, लता मंगेशकर जी का, तो कितने सारे लोग वहां पे गए, कितने लोग भावना से ओतप्रोत हो गए, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई उनको, और आने वाले कितने सैकड़ों सालों में उनको याद रखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे अद्भुत प्रमाण हैं जो माताओं को, मातृशक्ति को विशेष स्थान स्वतः ही अपने आप में दे देते हैं। उसको किसी की ब्रांडिंग की या बोलने की या ऊपर से देने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आवश्यकता इस बात की है कि माँ से यही प्रार्थना होगी, जितनी भी मातृशक्ति है, कि समभाव व्यवहार करें सबके साथ। माताएं सबके साथ सम व्यवहार करती हैं, समदृष्टि से करती हैं, तो एक अद्भुत समाज का निर्माण होगा। केवल अपने और अपना से ऊपर उठकर अगर विस्तृत रूप से अगर माताओं की शक्ति संसार में प्रवाहित हो, तो एक अद्भुत वात्सल्य का प्रेम उमड़ पड़ेगा और एक अद्भुत समाज की स्थापना होगी। शायद आज उसकी विशेष आवश्यकता है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का कल्याण हो, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, विहंगम योग के प्रचार प्रसार में भी बहुत ही आगे बढ़ें। इसी से हमारा कल्याण संभव है। और इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सभी को, आप जितने भी हैं, मैं देख लेता हूँ कौन कौन है, जो भी लोग हैं, आप सभी, चेतन जी ने बताया मुझे कि ऐसा कार्यक्रम रखा गया और मैंने ऐसी कुछ तैयारी नहीं की थी। बहुत सारे लोग जुड़े, आप सभी लोग आए। और अमरजीत कौर जी को मेरा सत सत प्रणाम है, उनके चरणों में प्रणाम है, क्योंकि मैं उनको बचपन से देखता आया हूँ। और जितने भी आप सभी आए हैं, मैं सभी को सहृदय प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सूर्यदेव की वाणी आती है और सूर्यदेव कहते हैं कि जब माता मुक्ति देवी जी का जब आता है कथन, माता मुक्ति देवी जी अपने आप में सिद्ध थी। और आपको मैं ये बात कभी बाहर नहीं आई, उनकी भी शक्ति कार्य करती है।
हाँ, पर वो परिवार तक ही सीमित रहती है और जगह अन्यत्र नहीं जाती। पर परिवार में भी उनका आज भी नियंत्रण रहता है उनकी आध्यात्मिक शक्ति का। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो माता मुक्ति देवी जीवंत हैं आज भी, जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करके खास तौर से सभी आत्माओं को जो उस योग्य हैं, खासतौर से परिवार में अपनी शक्ति का, अपनी कृपा बनाए रखती हैं। मैं माता मुक्ति देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उस महान आत्मा को सत सत प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा हमेशा हमेशा हम सभी पर बनी रहे और आप सभी पर बनी रहे। सदगुरुदेव सत्ता तो वही है जो जीवन मुक्त करेंगे, कोई करने वाले वही हैं। उनको तो प्राप्त हुआ, लेकिन करने वाले सदगुरुदेव भगवान है, पर उनकी कृपा हम परिवारजनों पर बरसती रहे, यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कोटिशः वंदन संत नामदेव जी। बहुत ही अद्भुत वाणी और अद्भुत क्षण हम सबके लिए। अभी हम सभी आपकी दिव्य वाणी की दिव्य धारा से जुड़कर ज्ञान और आनंद के अद्भुत प्रवाह का अनुभव कर रहे थे। सद्गुरु कृपा से आपके मार्गदर्शन में हमारा जीवन प्रकाश के पथ पर यूं ही गतिमान रहे, ऐसी आपके चरणों में बारंबार हम सबकी प्रार्थना है। On behalf of everybody present here who have greatly benefited from your inspirational and motivational words of wisdom, I'd like to express our heartfelt gratitude to you, Santji. We are eternally grateful, and words can't express how blessed we feel to have your divine presence on this special occasion of International Women's Day. Thank you so much. Thank you so much once again. आपके आशीर्वाद की कामना के साथ पुनः सादर प्रणाम और जय सद्गुरुदेव। Thank you, Sant Shri. Whenever we listen to your Divya Vani, feels like uplifted in the journey of enlightenment. सच में बहुत गूढ़ बातों का ज्ञान हमें हुआ। Society should focus on women upliftment first, as she is the first step for family upliftment. They can easily focus on several areas of life. It's easy to be spiritual for them. Sant Shri Namdev Ji Maharaj, आपको नमन है। I would like to thank Nivedita Ji for welcoming Sant Namdev Ji Maharaj and Prachi Pandey Ji for the graceful gratitude. Now, we have come towards the phase of the session, which is Vandana, Aarti, and Shanti Path. Guru Vandana is the way to express gratitude for the Master for receiving help in meditation. We request well-being of health, wealth, and seek his blessings for spiritual knowledge. To offer Guru Vandana at the holy feet of the Master, I would invite Sunita ji from UAE. Over to you, Sunita ji. जय सद्गुरुदेव। वंदना। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए। शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। शिष्य गुरु में प्रेम शांति हर्ष विश्व उद्धार में योग विद्या नीति बल हो बीत बल उपकार में अटल निज कर्तव्य पथ में साहस बल दिन दिन बढ़े। जिज्ञासु हो कर विश्व
क्रम गति हमसे पढ़े। जड़े लोक चेतन लोक प्रभु से नहीं कभी अभिमान हो। विनती सदा फल शिष्य गुरु की प्रभु दया सन मान हो। पर विद्या योग दुर्लभ मंत्र विश्व उद्धार का। प्रभु गुप्त तत्व सुदीन हमको भार जग पर चार का। अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बारे में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार हो विनती सदा फल योग की। पर विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल के कोला पक्षी माया संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदायनी ज्ञान सर्व आगार हो। जन सदा फल प्रभु शरण में जीवन प्राण आधार हो। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है। जिमि नग्न आश्रित सिंधु के हैं विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन दीजिए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। Thank you, Sunita ji, for the soulful Vandana. Aarti is a prayer where we acknowledge the power of Almighty and pray that all disciples experience eternal joy, love, and freedom from worries under His holy guidance. I request everybody to stand up for the Aarti and invite Kirti Sagar ji from UAE to perform it. Over to you, Kirti ji. Kirti ji, are you connected? जय सद्गुरुदेव आरती। जय गुरुदेव हरे सद्गुरुदेव हरे। शीश जनन के संशय क्षण में दूर शरण आवे सतपथ पावे। मोह मिटे जीव का सुख शांति वे पावे। दुख मिटे जग का
तुम हंस उतारन आए, देव बाह गहो जन की। तुम बिन और न मेरा प्रभु शरण गहो किनकी। तुम स्वामी जग तारण, शरण शरण तेरा। प्रकृति स्वभाव मिटाओ, सहज स्वरूप मेरा। दीन दयाल दयामय, संतन संतपति। भक्ति मिले अन पायनि, आरत प्रेम गति। सदगुरु बंदी छोर की, पर आरती कीजे। चरण कमल चितलाई, सब अर्पण कीजे। पांच तत्व बाती बरी, जगमग उजियारा। जगमग ज्योति प्रकाशिके, किया गया अंधियारा। देव परम आराध्य हो मम पूरण स्वामी। जन्म सफल जन्मानि, विभूति अनामि। परम पुरुष अनूप अविचल, परम देव आराध्य है। विरह वर अनुराग रत, विवेक गुरु गम साध्य है। ज्ञान दीप अखंड ज्योति, मधुर ध्वनि अनहद बजे। दर अधर के पर सिंहासन, सहज स्वर अनुभव गजे। जय गुरुदेव हरे। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत। तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर धरा के पार। कहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। Thank you, Kirti ji, for singing Aarti in such a soulful voice. Now, I request everyone to sit down. Shanti Path is prayer for universal peace. This prayer rekindles righteousness in meditator's heart. I request Chaitrali ji from UK to perform Shanti Path. Over to you, Chaitrali ji. जय सद्गुरुदेव। शांति पाठ। देहो शांति मही शांति हो, आप शांति शशि शांति। औषधियों की शांति हो, और वनस्पति शांति। विश्वदेव की शांति हो, अक्षर अंतर शांति। पंचशब्द की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति। शांति समुद्र पार है, अमित अनंत है शांति। सो स्वरूप पर शांति हो, सर्व शांति हो शांति। नी अक्षर की शांति हो, नित्य सीम है शांति। आप शांति सब शांति है, सर्व शांतिमय शांति।
अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संतंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा जित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति, हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। Thank you, Chatrali ji, for singing Shanti part in such a blissful voice. Now, I would request Usha Devi ji from Bahrain to recite Jai Ghosh. Over to you, Usha ji. जय सद्गुरुदेव। जय घोष। नित्य अनादि सद्गुरुदेव की जय। स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव की जय। जय अभ्यास सिद्ध सद्गुरुदेव की जय परंपरा सद्गुरुदेव की जय जय या विहंगम योग की जय जय अअंकित श्वेत ध्वजा की जय जय परम तीर्थ वित्तिकुट धाम की जय जय महर्षि सद्गुरु सदाफल आश्रम झूसी समाधि धाम की जय जय हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय जय मधुमती आश्रम की जय जय दंडक वन आश्रम की जय जय सर्वेद महामंदिर धाम की जय जय सर्वेद महामंदिर धाम की जय हम सबका संकल्प महान सर्वेद सर्वेद महामंदिर निर्माण हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सद्गुरुदेव की जय। जय Thank you, Usha ji, for Jai Ghosh. This program was planned by our respected Guru Bahans Maya ji and Neetu ji. They worked hard to make this program meaningful and successful. I request Maya ji to say some words. Over to you, Maya ji. Jai Sadgurudev to you all. Shat Shat Naman, salutation and Sadar Pranam to Sanshriji, Kotishah Naman and Sadar Charan Sparsh to Pujniya Mata ji evam Bhabhi Ma ji. Words are short to express our gratitude for your divine presence onto this forum today. Thank you all. हम सभी देश विदेश से जुड़ी बहनों की तरफ से चेतन जी का बहुत बहुत साधुवाद. चेतन जी was our mentor to commence this seva and gave us this wonderful opportunity to be connected globally across the world. We express our reverence and gratitude to our guest speakers, Srimati Amarjit Kaur Aunty ji and Mrs. Padmini Naidu Has ji.
आपका बहुत बहुत साधुवाद. We thank Bobby Layal ji for her devotional bhajan today. Many thanks to you. Neetu ji, USA, New Jersey, and I were blessed with this seva to begin planning, and we have many heroes behind the scene helping us throughout our journey till today. We thank you. We thank you, our young presenter, young presentation maker, Surati Sharma ji, our Yuva Shakti from Guwahati, Assam, India. Joining her with equal hands are our beloved Guru Bahans, Tulika ji and Rekha ji from USA. स्वामी जी कहते ही हैं अपनी अमृतवाणी में, यदि युवा शक्ति और मातृ शक्ति जुड़ जाए विहंगम धारा में तो उसका आवेग कौन रोक सकेगा. Many thanks to our hosts Prachi Chirsagar ji and Ruchi Avasthi ji from USA for their tremendous effort being our backbone to support this event. Thank you to Chandan Singh ji along with his better half Jyoti ji from Singapore for being our meeting organizers. They are helping us zooming the meeting and streaming this event live onto social media channels. We thank our special women Seva presenters, Toshvi ji, Rashmi ji from USA, and Kusum ji from Dubai, UAE. We also thank you, all our beloved Guru Bahans, for their melodious, bhavpurn singing of the prayers. They came together like colors of rainbow. We needed many helping hands to execute this event successfully, such as reviewing the scripts and presentation, giving timely feedbacks, being a backup for the primary participants, sending reminders, and whatsoever. Everything would have not been possible without you. Your tremendous support and dedicated seva helped us to reach here. Yes, we thank you all, our Matri Shakti, for your valuable contribution on this seva. You have just inspired many out there. Brahma Vidya Paracharaka Sadguru ka जग काम करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम. आप और हम तो बस निमित्त मात्र हैं. हम सब सद्गुरु प्रभु के आभारी हैं. हमें उन्होंने इसमें निमित्त बनाए. Once again, many thanks to all of you in our audience to make this event successful today. Jai Sadgurudev. धन्यवाद माया जी, आपके सेवा भाव को नमन है. सच में थैंक यू सो मच माया जी and Neetu ji. I'm sure after listening to this session, many women will be inspired and bring their hidden capability out. I would like to thank our all Guru Bhai and Guru Behan who are truly following the spirituality lesson of non-discrimination. It's nice to see that men, women, both working together to reach the goal of spirituality. Thank you everyone for joining. You have a wonderful day and a wonderful life ahead with Sadguru's grace. नर नारी साधन करे दोनों एक समान, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार. प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय. जय सद्गुरुदेव.